So here comes what I am. Of course, a student. What you are. You are also maybe student. So let's do the student study. So here basically I decided that I should prepare my May 23 audit C-Inter with CARO 2020 from the very first day because I have less understanding for the CARO 2020. So let's start this topic and let's read it together. So reporting under Companies Auditors Report Order 2020 CARO 2022. Why I'm recording this video because I find very much difficulty while reading the audit. Though CA Deepika Rathi helped me a lot in reading and taking interest in audit, but still sometimes I feel so alone. Therefore, I always try so that the audit may become so much interesting for me, and I realized it only after reading from C. Deepika Rathi. She is a teacher. I am not a student of her, but I find her so much amazing after reading from many of her YouTube video. I found that audit is equally as much as interesting than any other subjects. So here is reporting under Companies Auditors Report Order 2020. CARO 2022 क्या बोलता है? In exercise of the power conferred by subsection 11 of section 143 of the Companies Act 2013, this and in the supersession of the Company's Auditors Report Order 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary Part 2, Section 3, subsection this, dated on the 29th March, except as respects things done or omitted to be done before such a supersession, the central government, after consultation with the NAFRA, that is National Financial Reporting Authority, constituted under Section 132 of the Companies Act 2013, hereby makes the following order, namely. तो हमें भी पता है कि पहले कारो 2016 था एंड आफ्टर वर्ड्स कारो 2020 आया. अब उसकी जो डिटेल है दैट मे बी आई डोंट नो मच अबाउट दैट डिटेल, बट कुछ जो है व्हाट दिस लाइन सिंग दैट सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी नेफ्रा के साथ मिलके एंड क्या किया कि कुछ पार्ट को वैसे ही रखा है except as respect things done or omitted to be before such, मतलब जो पहले था. तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 hereby makes the following order, namely बनाया. Short title application and commencement. Short title, this order may be called the company's order report order 2000. तो कारो की फुल फॉर्म क्या होती है? वी ऑल पीपल नो दैट इज द कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020. तो मतलब यहाँ से अपन को फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स हमें 2020 पढ़ना है. और ये क्यों हुआ? बिकॉज एज वट एवर दी सी जी एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद नेफ्रम जो भी डिस्कशन हुआ और उन्होंने कहा कि ये जो अप्लाई होगा तो देयरफॉर हम 2020 पढ़ रहे हैं. इट शेल अप्लाई टू एवरी कंपनी. तो ये ऑर्डर क्या बोलता है? इट शेल अप्लाई टू एवरी कंपनी. हर कंपनी पे लगेगा. इट शेल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड अंडर क्लोज 42 सेक्शन 2. तो हमें भी पता है कि फॉरेन कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब अंडर किस में डिफाइंड है? अंडर क्लोज 42 सेक्शन 2 क्लोज 42 में डिफाइंड है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 18 of 2000 herein referred to as a companies except. कारो किन किन पे नहीं लगता है? कारो एज पर दी दीपिका मैम्स गाइडलाइन उन्होंने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दैट इज द बायोज एड पे नहीं लगता है. व्हाट इज द बायोज एड? दैट इज द बैंकिंग कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. इंश्योरेंस कंपनी पे BIO, तो बी स्टैंड्स फॉर बैंकिंग कंपनी. बैंकिंग कंपनी एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. देन I stands for the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी पे भी नहीं लगता है एज डिफाइंड अंडर द इंश्योरेंस Act 1938 वाले पे. Then she say that O stands for what? O stands for one person according to her. तो one person company पे भी नहीं लगता है, which is defined under section 2 clause 62 and section 8 company bios 8
बायूस, तो इसमें अभी एक और स्मॉल कंपनी भी होगा। एंड 8 दैट इज सेक्शन 8 कंपनीज जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाली हैं। एंड फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वाली लाइन आई थी, तो उन्होंने ये बताया था, तो आई हैव नॉट एट ऑल राइट टू write her short tricks, but still I am discussing because I am also taking lectures from her only. तो उन्होंने ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि डेट बायोज 8 वाली कंपनीज पे कारो नहीं लगता है। बी स्टैंड्स फॉर द बैंकिंग कंपनी, आई स्टैंड्स फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, ओ स्टैंड्स फॉर द वन पर्सन कंपनी, एस स्टैंड्स फॉर द स्मॉल कंपनी, 8 means basically the section 8 companies. उसके बाद later on she also discuss and whatever whichever it is written hereby also, a private company, a private limited company which is not paying a subsidiary or holding of a public company, और किस पे कारो नहीं लगेगा, तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर सब्सिडी होल्डिंग होगी तो लग जाएगा, इट मीन्स। तो सब्सिडी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी की। अब प्राइवेट कंपनी है बट that the same should not be the holding and subsidiary of a public company having a paid up share capital and reserve and surplus not more than 1 crore. she also gave a short trick here, that is उन्होंने ये बताया था that 1 1 10 एक एक 10, शी यूज टू टीच लाइक दैट एक एक 10, एक एक 10 यानी कि उन्होंने ये बोला था कि पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है दैट शुड बी नॉट लेस देन 1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट। दैट शुड नॉट मोर देन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बैलेंस शीट डेट पे आपकी पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और जो बोरिंग्स है दैट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो उन्होंने इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, दैट योर पेड अप शेयर कैपिटल, हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, दैट द सेम शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट पे। और जो आपकी बोरिंग्स है दैट ऑल्सो शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ फ्रॉम किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बोरिंग्स वाले केस में लिख रखा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी समय नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच डज नॉट, और टोटल रेवेन्यू, और जो हमें क्या बोला है, एंड विच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज। शेड्यूल 3 में जो आपका टोटल रेवेन्यू डिस्क्लोज किया जाता है इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला भी एक्सीडिंग, जो कि 10 करोड़ से एक्सीड हो जाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज ये बहुत ही, बिकॉज दिस इज अ न्यूमेरिकल डेटा, करेक्ट। तो 1 करोड़ तो है हमारा किसके केस में, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स, paid up share capital and free reserves. And then वो किस पे, as on the balance sheet date पे, which is on which date, balance sheet date। उसके बाद आता है हमारा जो बोरिंग्स है, टोटल बोरिंग्स। बोरिंग्स के लिए हमें कहा गया है कि जो हमारी बोरिंग्स है, जो भी हमारी बोरिंग्स है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए एट किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रॉम एनी बैंक, from any of the bank और FI that is the financial institutions से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, from any of the bank or financial institutions at any point of time during the financial year, at any point, यहाँ पे क्या बोला है, any point of time during the financial year, करेक्ट। उसके बाद आता है हमारा जो टोटल रेवेन्यू, जो भी हमारा डिस्क्लोज्ड है, टोटल रेवेन्यू जो हमारा डिस्क्लोज्ड है एज पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू डिस्क्लोज है एज पर दी शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल रेवेन्यू डिस्क्लोज है, इंक्लूडिंग इसमें हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला रेवेन्यू भी लिया है हमने, एंड दैट शुड नॉट एक्सीड, वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, दैट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें हमने बोला 1 करोड़, इसमें हमने बोला 1 करोड़, और इसमें हमने बोला 10 करोड़, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं एक, एक और 10, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक
और 10। करेक्ट। तो हमारा ये आ जाता है। देन उसके बाद हम लेटर ऑन क्या पढ़ेंगे, कमेंसमेंट। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेटेड। अब हमारे क्या बता रखा है कि बैंकिंग कंपनी पे कारो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज इनकी सेपरेट सेक्शन है, बैंकिंग का अलग चलता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इंश्योरेंस कंपनी का हमने पढ़ा 1938। कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज। 1 पर्सन कंपनीज, स्मॉल कंपनी यानी कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या है, दैट शुड नॉट बी द सब्सिडी एंड होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एंड उसके बाद जो लिमिट है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। और टोटल बोरिंग फ्रॉम द बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दैट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ फ्रॉम एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और हमने थर्ड पढ़ा था कि जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल रेवेन्यू है which is disclosed as per schedule 3 of the companies including the revenue from discontinuing operation should not exceed 10 crore during the financial year as per the financial statement. यहाँ तक we have not any doubt till now. अब हम आगे का पढ़ते हैं। Reading and recording, what it literally make one thing much better is because auditing is a kind of a theory subject. Not people, all people have a similar kind of interest in a theory and as well as practical, just like me, because I find very so much difficulty in reading the theory subject. So if someone is listening me, then I also ensure that whatever I am reading and speaking, whether it is actually correct or not, therefore it also enhances my interest in that particular one. Therefore I am just merely just because of this reason I am recording this one. Otherwise I have no intention or anything other than that. Now question comes that Educating Child is a limited company which is registered under section 8 of the Companies Act 2013. And the best part is this is a module in which we all know that we have to read the ICI module, and particularly for the subject of audit, because it is very much easy under the module itself. Language is self-explanatory, and all the question comes from the module itself, so it's very far much advantages for all the people who are reading this module. Educating Child is a limited company registered under section 8 of the Companies Act 2013. Educating Child एक limited company है जो कि section 8 में registered है. In the given case, Educating Child is a license to operate under section 8 of the Companies Act. तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एजुकेटिंग चाइल्ड जो है वो सेक्शन 8 में आ रही है। देयरफॉर कारो 2020 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एजुकेटिंग चाइल्ड अकॉर्डिंगली, तो नहीं लगेगा। हमने यही पढ़ा है कि सेक्शन 8 का अलग सेक्शन है, कारो एप्लीकेबल नहीं है, तो ये है करेक्ट। तो वी हैव, तो हम भी इसके साथ एग्री है, करेक्ट। वर्ड इज नॉट वर्किंग क्या? आई थिंक ये नहीं आ रहा है टू, हो सकता है ना। तो हियर वी कैन राइट कि ओके ये वाला समझ आ गया। therefore I have written okay here, this hereby. Next come is अंशु प्राइवेट लिमिटेड हैज़ फुली पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। अब हमें उसका प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता है, ओनली इफ इट हैज़ फुलफिल द स्पेसिफाइड कंडीशन, बट हमें पहले कंडीशन को चेक भी करना होगा। अंशु प्राइवेट लिमिटेड हैज़ फुली पेड अप कैपिटल है उसके पास, रिजर्व एंड सरप्लस है 50 लाख की, करेक्ट। हमारी लिमिट में क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ की थी, शुड नॉट बी मोर देन। इसमें क्या 50 लाख, तो इसमें हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड बोरो 70 लाख ईच फ्रॉम अ बैंक एंड एफआई इंडिपेंडेंटली। उसमें हमारा क्या था कि इट्स बोरिंग शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें है 70 लाख, तो ये भी अभी तक चल जाएगा। उसके बाद इट हैज़ अ टर्नओवर, टर्नओवर के लिए था कि 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 करोड़ या 900
लाख है, यानी कि अगर 1000 लाख हो जाते तो 10 करोड़ हो जाता, तो अभी तक तो ये हो गया। इन द गिवन केस ऑफ अशु प्राइवेट लिमिटेड इट हैज पेड अप कैपिटल 50 लाख है, जो कि लेस देन 1 करोड़ है। टर्न ओवर 9 करोड़ है, विच इज लेस देन 10 करोड़। However, it has a maximum outstanding borrowing of 1.40 crore, 70 lakh and 70 lakh collectively from the bank and FI। यहाँ पे हमें क्या बोला था? During the year, the company had borrowed 70 lakh each। 70 लाख जो है ईच है, यानी कि 70 लाख जो है वो 2 बार है फ्रॉम अ बैंक। बैंक से भी 70 लाख है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी। तो यहाँ पे हमारी लिमिट जो एक्सीड कर गई 1.40। हमें बहुत ही डिटेल में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम यहाँ ईच नहीं, इच अगर हमारा ये ईच मिस हो जाता एंड इस लैंग्वेज से हमें नहीं पता चलता, तो हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता। इसलिए हमें इस ईच को फोकस करने की ज़रूरत है। एंड फ्रॉम अ बैंक, बैंक से भी इतना है और एफआई से भी इतना है। तो देयरफॉर इट फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन रिलेटिंग टू बोरिंग, क्योंकि ये फेल हो चुका है फुलफिल करने के लिए कंडीशन। दस कारो 2020 शेल बी एप्लीकेबल, इसलिए कारो 2020 शेल बी एप्लीकेबल हो जाएगा अकॉर्डिंगली टू दी अशु प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट, तो ये भी हमें आ गया है। तो so we have not doubt any kind of doubt. I also read it for the first time. This Caro. Next आते हैं, auditors report to contain matters specified in a para 3 and 4। auditors report to contain what are the matters जो कि specify किए गए हैं। auditors report to contain matters specified in para 3 and 4। ये क्या है? Every report made by the auditor under section 143 of the Companies Act on the accounts of every company audited by him। जो भी हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑन द अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी, जो भी ऑडिट की जाती है, टू विच दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर अप्लाई होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो कि कमेंसिंग ऑन आफ्टर द 1 अप्रैल 19 के बाद। शेल इन एडिशन द कंटेन द मैटर स्पेसिफाइड इन पैरा 3 and 4 एज मे बी एप्लीकेबल, प्रोवाइडेड दिस ऑर्डर शेल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑर्डर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या? हाँ हाँ, this order shall not apply to the auditor's report on consolidated financial statement except clause 21 of para 3। तो para 3 21 जो है वो कंसोलिडेटेड, दिस ऑर्डर शेल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंसोलिडेटेड में पैरा 3 नहीं लगेगा। पैरा 3 क्या है? मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कौन से मैटर्स है जो कि इंक्लूड किए जाने होंगे? पैरा 3 बताता है कि व्हाट आर द मैटर दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट में कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जो कि इंक्लूड होंगे? व्हाट आर द मैटर्स दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट में ऐसे कौन से मैटर्स होंगे जो कि हमें इंक्लूड करने होंगे, वो पैरा 3 बताता है। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी टू विच द ऑर्डर अप्लाई शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली। जो ऑडिटर की रिपोर्ट है ऑन द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी टू विच द ऑर्डर अप्लाई शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होंगे? whether the company is maintaining proper record showing full particulars including the quantitative details and situation of a property plant and equipment। तो बेसिकली अब हमारे पैरा स्टार्ट हो गए हैं। पैरा 3(1) हमारा डील करता है विद दी फिक्स एसेट्स के साथ। उसके बाद पैरा 3(2) इन्वेंट्री के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो पैरा 3(1) है वो स्टार्ट हो गया। तो ऑडिटर यहाँ पे बताया कि व्हाट आर द मैटर्स दैट इज टू बी इंक्लूडेड अंडर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर पैरा 3 जो हमारा होता है वो होता है पैरा 3(1), जो हमारा पैरा 3(1) है। पैरा 3(1) हमारा बात करता है अबाउट दी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के बारे में बात करता है। पैरा 3(1) टॉक्स अबाउट व्हाट? पैरा 3(1) टॉक्स अबाउट दी फिक्स एसेट्स। करेक्ट। हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर दी मैटर दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट।
कौन से ऐसे मैटर्स है जो कि इंक्लूड होते हैं इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट? द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी टू विच द ऑडिट अप्लाई शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली पैरा 3(1), दैट इज फिक्स असेट्स। हमें भी बताया फिक्स असेट्स के अंदर पैरा 3(1) फिक्स असेट। अभी हम वी आर ओनली डिस्कसिंग दिस फिक्स असेट्स वाला पार्ट। Hope that the recorder also support us because already its limit 20 minutes हो गया है, तो hope it may be continue, otherwise we have to record the separate video for that. Para 3(1) is the fixed assets. We all people know that Para 3(1) deals with the fixed assets. Whether the company is maintaining proper records, क्या कंपनी मेंटेन करिए, क्या कंपनी तुम मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स, सारे के सारे पर्टिकुलर्स को लेके, इंक्लूडिंग जो क्वांटिटेटिव डिटेल्स है, सिचुएशन है प्रॉपर्टी की और प्लांट एंड इसकी। तो हम क्या बोलते हैं, क्या कंपनी तुम मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स, यानी कि फुल डिटेल, क्वांटिटेटिव डिटेल, फुल पर्टिकुलर्स आने चाहिए, उसमें क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी आ रही है नहीं, सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की सिचुएशन है क्या वो भी आ रही है या नहीं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है पीपीई को लेके। वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग, क्या कंपनी मेंटेन कर रही है, क्या कंपनी मेंटेन कर रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हमारी जो कंपनी है क्या वो मेंटेन कर रही है। रेफरेंसेस नहीं, इंसर्ट नहीं, I want 3 bullet points here. Not here. क्या कंपनी, हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या कंपनी मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स यानी कि पीपी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लिखा है पीपी के लिए, यानी कि हम फिक्स एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिक्स एसेट्स पीपी को लेके हम यहाँ बात करें, क्या कंपनी मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स पीपी को लेके, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को लेके, कि कंपनी मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसको लेके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेके। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा हमारा फुल पर्टिकुलर्स। क्या आएगा, क्या फुल पर्टिकुलर्स मेंटेन करी है, क्या कंपनी हमारा तुम फुल पर्टिकुलर्स मेंटेन कर रही हो, फुल पर्टिकुलर्स मेंटेन कर रही है। द नेक्स्ट कम इज, क्या वो हमारी क्वांटिटी डिटेल्स रख रही है ऑफ दी पीपी, क्या वो क्वांटिटी डिटेल्स रख रही है, क्या क्वांटिटेटिव, क्या वो क्वांटिटेटिव डिटेल्स रख रही है क्या। एंड द थर्ड वन इज, क्या वो सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी बता रही है कि ये सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऑफ द पीपीई, क्या सिचुएशन ऑफ पीपीई बता रही है। व्हाई आई ऑल्सो अगेन write it down, already it is written there because this is the line which I have to quote up in any situation, मुझे ये लिखना ही पड़ेगा, otherwise institute will not given me marks. तो वेदर क्या कंपनी मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मेंटेन करने हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो कि शो करती है फुल पर्टिकुलर्स क्वांटिटेटिव डिटेल्स। तो मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपीई हमें यहाँ से लिखना होगा, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपीई, जो कि ये हमें बता रही हूँ शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स के बारे में। मेंटेनिंग, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे पैरा 3(1) फिक्स असेट्स में आएंगे, पैरा 3(1) फिक्स असेट्स में आएंगे, फिर हमें लिखना होगा वेदर द कंपनी, क्या जो कंपनी है, वेदर द कंपनी, क्या जो कंपनी है क्या वो मेंटेन कर रही है, वेदर द कंपनी इज, वेदर द कंपनी, फिर क्या वो मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट, पीपी का, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपी शोइंग दी, जो कि क्या बताती हो,
It's showing the proper records of PPE, showing the full particulars, quantitative details and the situation of the PPE. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा पीपी के रिगार्ड में ये हो गया. हमें क्या करना होगा, अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ पूछा है तो पैरा 3.1 fixed assets. Para 3.1 fixed assets, whether the company is maintaining proper records of PPE showing the full particulars, the quantitative details and the situation of the PPE. सेकेंड वाला पॉइंट जो हम लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनटेंजिबल असेट्स is maintaining proper record showing full particulars of intangible assets. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ, क्या हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख रहे हैं पीपीई का, पीपीई में ही शोइंग, जो कि शोइंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपीई शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन. ये तो फर्स्ट हो गया. मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनटेंजिबल शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स, मेंटेनिंग proper records of intangible, maintaining proper records of intangible assets showing full particulars. तो हम ये लिख सकते हैं, इसमें वही लाइन है, दोबारा से लिखी है बस. पैरा 3.1 में हम ये लिखेंगे, whether the company is maintaining proper records of PPE showing the full particulars, quantitative details and situation of the PPE. पैरा 3.2 में पैरा 3.1 में ही सेकंड पॉइंट में हमें लिखना होगा कि मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसका, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख रहे हैं या नहीं हम इनटेंजिबल असेट्स का, जो कि पूरे पर्टिकुलर्स बता रहे हैं. उसी के जो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये पैरा मतलब पीपी के रिलेट्स में ही है कि अगर वो टेंजिबल हो तो ये है और इनटेंजिबल हो तो ये, क्योंकि अगर टेंजिबल होगा तो पर्टिकुलर्स के साथ क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी बताएंगे, सिचुएशन भी बताएंगे, बट इनटेंजिबल होगा तो फुल पर्टिकुलर्स. उसके बाद ये आता है, क्या जो पीपी है हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल. क्या आप ये बताइए, क्या जो पीपी है उसको आप फिजिकली वेरीफाई करते हो बाय द मैनेजमेंट के द्वारा एट रीजनेबल इंटरवल्स में, वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वर नोटिस ऑन सच वेरिफिकेशन एंड इफ सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, whether the property plant and equipment have been physically verified. तो पहले आप ये बताइए कि आपका जो पीपी है क्या उसको फिजिकली वेरीफाई किया जाता है बाय द मैनेजमेंट पे एट रीजनेबल इंटरवल, क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वर नोटिस की गई है, और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की है तो whether the same have been properly dealt with in such books of account और एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस ऑन सच वेरिफिकेशन, अगर कोई है तो आपने उसको प्रॉपर्ली डील किया है या नहीं. तो ये हमें लिखना है सेकेंड वन में. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. यहाँ हम क्या लिखेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड है हमारा पॉइंट. फर्स्ट हमारा पीपीई से था, सेकंड हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन से है. पैरा 3.1 के अंदर ही पॉइंट्स चल रहे हैं, दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए है हमारा. फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड है हमारा पॉइंट. फिजिकल वेरिफिकेशन को ये बोलते हैं कि whether PP have been physically verified by the management. अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हम बुलेट पॉइंट्स का यूज कर लेते हैं. क्या जो whether PP have been
यही लाइन ऊपर लिखी है, क्या पीपी जो है हमारा, क्या वो हैव बीन फिजिकली, क्या वो फिजिकली वेरीफाई किया गया है, वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट, बाय द मैनेजमेंट at reasonable intervals. Whether the PP have been physically verified by the management at reasonable intervals पे क्या उसे physically verify किया है, अगर ठीक है, मतलब वेरीफाई तो करना चाहिए. वेदर एनी मटेरियल, अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की है ऑन सच वेरिफिकेशन, एनी मटेरियल, अगर कोई भी एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर आपने नोटिस की हो, डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ड, अगर नोटिस्ड हो, अगर कोई भी फिजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस हो ऑन सच वेरिफिकेशन पे, वेरिफिकेशन पे इफ सो, अगर होता है ऐसा, तो हमें क्या करना होगा, इफ सो सेम हैव बीन, हमें सेम हैव बीन प्रॉपरली, उसे प्रॉपरली क्या करना होगा, डील करना होगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द BOE, डील इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, करेक्ट. तो फिक्स एसेट्स से अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को लेके. सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके. अब थर्ड हमें पढ़ना है अबाउट दी टाइटल डीड. Title deed, whether the title deed of all the immovable property other than property where the company is a leasee, leasee and the lease agreement are duly executed in favor of the leasee, disclosed in the financial statement, are held in the name of a company if not provide the detail thereof in the format below. थर्ड में हमें ये देखना है कि वेदर द टाइटल ऑफ टाइटल डीड्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, हम बोल रहे हैं कि जो भी टाइटल डीड है इमूवेबल प्रॉपर्टी की आर हेल्ड, कि वो कंपनी के नाम पे है. कंपनी बताओ क्या जो टाइटल डीड है इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी वेयर द कंपनी इज अ लीजी, मतलब इस पार्ट के अलावा अदर देन द प्रॉपर्टी वेयर द कंपनी इज अ लीजी एंड लीज एग्रीमेंट, इसके अलावा जो भी आपकी टाइटल डीड है लीज और लीजी वाले के अलावा डिस्क्लोज किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो कंपनी के नाम पे है, एंड इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल देयर ऑफ इन द बिलो फॉर्मेट. और अगर सपोज नहीं है तो आप इस बिलो फॉर्मेट में हमें डिटेल प्रोवाइड करो. फर्स्टली आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है टाइटल डीड्स की, लीजी एंड लीज एग्रीमेंट, एक्सेप्ट दिस अदर देन दी कंपनी, लीजी और लीज एग्रीमेंट जो एग्जीक्यूटेड इन फेवर, इसके अलावा आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है. एंड इफ नॉट देन डिटेल प्रोवाइड करो बिलो फॉर्मेट के अंदर, कि डिस्क्रिप्शन कौन सी वो प्रॉपर्टी है, उसकी ग्रोस कैरिंग वैल्यू क्या है, हेल्ड इन द नेम ऑफ किसके नेम पे है, वेदर प्रमोटर के नेम पे है, डायरेक्टर के नेम पे है, या फिर किसी रिलेटेड एम्प्लॉय के, कंपनी के नेम पे नहीं है तो किसके नेम पे है. पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, पीरियड बताइए. रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ, क्या रीजन है कि वो कंपनी के नाम पे नहीं है. एंड ऑल्सो इंडिकेट इफ डिस्प्यूट, और अगर कोई केस चल रहा है तो वो भी बताइए. तो सी पॉइंट में हमें ये चीजें बतानी है. सी पॉइंट में हमें क्या बताना होगा, अबाउट दी टाइटल डीड्स के बारे में बताना है. what we need to consider, what we need to disclose about the title deeds के बारे में हमें बताना होगा. टाइटल डीड्स में हम बोलते हैं whether the title deeds, whether the title deeds, क्या जो टाइटल डीड्स है, whether the title deeds of the, whether the title deeds of the immovable property of the immovable, whether जो टाइटल डीड्स है ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली आर हेल्ड इन द नेम ऑफ, क्या वो हेल्ड है इन दी, किसके नेम में, इन द नेम ऑफ द कंपनी, इन द नेम ऑफ द कंपनी.
whether the title deeds, हम क्या बोलते हैं, क्या जो title deeds है मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो the same are held in the name of a company, कि कंपनी वो तुम्हारे नाम पे है title deeds, and if not, और if not, और अगर सपोज नहीं है, अगर नहीं है, and if not, अगर नहीं है, then provide the details thereof. If not, then what you need to do is to then provide the details provide करनी है आपको, details, then provide the details thereof. Are you getting my point? अगर suppose immovable property है, अच्छी बात है, टाइटल डीड्स बताइए, टाइटल डीड्स तो होनी चाहिए ना द नेम, और अगर नहीं है देन डिटेल प्रोवाइड कीजिए इन द बिलो फॉर्मेट, और इन द फॉर्मेट विल बी दिस, तो बिलो फॉर्मेट में आपको डिटेल्स बतानी है. डिटेल्स इंस्टीट्यूट कभी भी कैसे भी पूछ लेता है, वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट इन सो प्लान्ड वे. सो अगर सपोज ऐसा कुछ आ जाता है, तो हमें बताना होगा ये फॉर्मेट भी, कि सबसे पहले वो प्रॉपर्टी बताओ डिस्क्रिप्शन के साथ, उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नेम पे है, क्या प्रमोटर डायरेक्टर या किसी रिलेटिव के नेम पे है, पीरियड क्या है उसका, और रीजन क्या है फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी, के नेम में क्यों नहीं आया, सॉरी, नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, व्हाई इट इज नॉट इन द नेम ऑफ अ कंपनी, कोई डिस्प्यूट है तो वो एक्सप्लेन कीजिए. Then comes that whether the company has revalued its property. The next point comes under the heading of revaluation के रिगार्ड में बात कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, बेसिकली रिवैल्यूएशन, करेक्ट, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है. तो whether the company has revalued its property plant and equipment, अगर सपोज कंपनी तुमने अपनी पीपीई को रीवैल्यू की है, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ यूज असेट और इनटेंजिबल असेट, दोनों आ जाते हैं इसमें, tangible and tangible, bought during the year, and if so whether the revaluation is based on the valuation, के जो revaluation है वो रजिस्टर वैल्यू के थ्रू ही हुआ है, उसका आप स्पेसिफाई कीजिए अमाउंट, और अगर जो चेंज है वो 10% या उससे ज्यादा है इन द एग्रीगेट ऑफ अ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल, तो हमें बताना होगा. तो हम क्या बोलेंगे, द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स पीपी, क्या कंपनी तुमने रीवैल्यू की, रीवैल्यूएशन से क्या बोलेंगे, द कंपनी, क्या कंपनी ने, द कंपनी हैज, क्या उसने रीवैल्यूड किया है उसका इट्स पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग जो हमें दिया है राइट टू यूज असेट, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग राइट टू यूज, एसेट, इंक्लूडिंग राइट टू यूज एसेट, और या फिर क्या, और इंटेंजिबल एसेट को, इंटेंजिबल एसेट और बॉथ ड्यूरिंग द ईयर में कभी भी, इफ सो, अगर ऐसा हुआ है, इफ सो, अगर सपोज ऐसा हुआ है, वेदर द रीवैल्यूएशन, क्या जो रीवैल्यूएशन है, whether the revaluation is based on the valuation, क्या जो revaluation है वो based है on the valuation by a registered valuer, क्या वो based है by the registered valuer के द्वारा, registered valuer, तो आपको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफाई कीजिए आप द अमाउंट ऑफ चेंज, स्पेसिफाई कीजिए अमाउंट ऑफ चेंज
और अगर इफ चेंजेस, अगर आपका इफ चेंज इज 10% या उससे ज़्यादा है, इफ इट इज 10% और मोर इन द aggregate of the net carrying value of each class of PPE, or tangible or intangible assets. तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की। बेसिकली ये पॉइंट जो है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। फर्स्टली this point is totally related with the revaluation. This is a shortcut key for highlighting the entire portion which you may, I don't know, during learn your internship period or H, and then किसी भी color से highlight कर लो, whatever color you would like to take. तो रीवैल्यूएशन से पॉइंट क्या रिलेटेड है, द कंपनी हैज रीवैल्यूएशन वाला जो पॉइंट है, कंपनी ने क्या तुमने, हे कंपनी, तुमने अपनी जो पीपी है क्या उसे रीवैल्यूड किया है। उसमें दोनों आ जाएंगे, इंक्लूडिंग राइट टू यूज एसेट या फिर इंटेंजिबल और बॉट ड्यूरिंग द ईयर। और अगर किया है, इफ सो वेदर द रीवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यू। हियर आई हैव, actually I have written the registered